This, of course, this entire area is, the Kashi Vishwanath complex, as we've seen it. It was recently inaugurated by Prime Minister Modi. So this is that area. And here is the mosque, the Gyanvapi Mosque, where the survey is currently underway. Now, this is where the Shivling has been found. We're showing you how exactly it looks. Here is where the Nandi is. And as the petitioners have been saying, right in front of the Nandi is where the Shivling has been found. So this is the entire complex. The Nandi is here. The Shivling that has been found is here, right here. As we've been showing you the Wuzu Khana. This is where the Shivling had been spotted as well. So this is how the area looks. And now let's show you the inside. Exclusive pictures that Times Now has access. These are the pictures. And this gives you a close-up of exactly what the talk or the debate is about. This is the area, as we've been talking about from a distance. This is how it's seen. Here is where the Hindu petitioners say that they have the Shivling, whereas there is another angle to it as well, with the Muslim petitioners saying that it is actually a fountain. Right. So Amir, Madhav and Mohit, all three of them joining us live this afternoon. Good afternoon to all three of you, especially going across now to Mohit, because Mohit, you've been speaking to the petitioners there and they are now seeking rather an extension of the survey. Of course, today a time that has been granted by the court. Tomorrow likely would be the submission of the 3 days commission that has been done by the advocate commissioners. But over to you, Mohit. I believe you have more live updates. Yeah. Well, yes, on Times Now we have the president of Kashi Vishwanath Temple Trust Council, Professor Nagendra Pandey. Is associated with the temple movement for a long time, and this is perhaps the first time he's going live on TV channels, and we'll ask him on every single detail that has emerged from Gyanvapi Mosque and whole controversy around it. Sir, एक और वीडियो आज एक सामने आया है, उसमें भी वही जो हिंदू साइड क्लेम कर रही है कि वहाँ पे वो शिवलिंग है, मुस्लिम साइड उसे फुवारा कह रही है। आखिरकार वो है क्या? क्योंकि आप टेंपल ट्रस्ट में भी आपने पूरा हिस्ट्री को पूरा जाना है, क्या कहेंगे? देखिए, फव्वारा तो है ही नहीं, और फव्वारा में वहाँ फव्वारा बनने के लायक जगह भी नहीं है, और वो जो निकला है वह स्पष्ट रूप से बिना किसी संदेह का वो भगवान शिव की मूर्ति है। तो शिव की मूर्ति को कह देना कि फव्वारा है, ये तो ऐसे ही जैसे कोई गाय को कह दे कि ये तो ऊँट है। ऐसा कि नहीं है, बिल्कुल एक गलत और झूठ बात है जो मिथ्या प्रचारित किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि न्यायालय के निर्णय तक शांत रहना चाहिए, क्योंकि न्यायालय को तय करना है कि वो क्या है, फव्वारा है कि शिव मूर्ति है कि क्या है। सर, एक चीज़ और बताइए कि पहले से आप लोगों को था ये कि यहाँ पे शिवलिंग है और ये नंदी के बिल्कुल सामने ही शिवलिंग है? क्योंकि जैसे ही सर्वे की टीम गई थी, बाहर आए थे हिंदू साइड के लोग, कह रहे थे बाबा मिल गए, लेकिन पहले से ही आप लोगों की तो काफ़ी समय से ये मांग थी कि वहाँ पे और अगर आप नीचे जाएंगे, तहखाने में जाएंगे, अंदर जाएंगे, खुदाई करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे, तो वहाँ मंदिर के और परिणाम मिलेंगे। हाँ, निश्चित मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मस्जिद का ढांचा कहा जा रहा है वो उस मंदिर को ही तोड़कर उसी पर खड़ा किया गया है। तो नीचे के जितने भी तहखाने होंगे, जितने मलबे होंगे, ये सब मंदिर के भग्नावशेष होंगे, उन्हीं के टुकड़े होंगे, उन्हीं की सारी मूर्तियाँ प्रतिमूर्तियाँ निकलेंगी। और आप जानते हैं कि एक मंदिर में केवल एक ही मूर्ति नहीं रहती है, 20 मूर्तियाँ रहती हैं, 20 विविध प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियाँ रहती हैं। ये सब के सब उसी के भीतर हैं। तो यानी कि आप चाहते हैं कि और ज़्यादा एक्सटेंसिव सर्वे हो, क्योंकि आज भी पिटीशन हेयर करनी जानी थी जो कि कोर्ट में वाराणसी के, लेकिन वो हो नहीं पा रही है अभी तक, क्योंकि वकील वहाँ हड़ताल पे। उन्होंने ये कहा है कि एक तो आप उस चबूतरे को हटाइए, दूसरा वहाँ पे जो मलबा है उसको हटाइए, ताकि नीचे जो है अंदर जाने का रास्ता खुले और ताकि और जो है राज बाहर आ सकते हैं कि आखिरकार अंदर है क्या। नहीं, बिल्कुल हम चाहते हैं, और ये आपके माध्यम से न्यायालय से भी मांग कर रहे हैं, शासन से भी मांग कर रहे हैं कि उसको पूर्ण रूप से साफ किया जाए, यानी कहीं किसी भी तरह से कुछ संदेह का दायरा न रहे। और परिणाम ये होगा कि खुलकर दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। तो ये जो फाउंटेन कहा जा रहा है, जो शिवलिंग आप लोग क्लेम कर रहे हैं, उसको इस पे क्या कहेंगे? फाउंटेन वो हो ही नहीं सकता। वो हो ही नहीं सकते। ऐसा तो क्यों? झूठ बात है, इसलिए कि जाकर देखिए किसी भी मस्जिद में फाउंटेन नहीं है। वो कह रहे हैं भाई वजू खाना है, वहाँ पे पैर धोते हैं। हाँ, वजू खाना है, ये तो हर मस्जिद में बना हुआ वजू खाना, लेकिन किसी वजू खाना में मैंने तो कम से कम
फव्वारा नहीं देखा। अच्छा पांडे जी, एक हमारे दर्शकों को बताइए, कई लोग ये कह रहे हैं, कई लोगों की तरफ से ये भी आया कि पहले मंजिल पे कैसे मिल गया शिवलिंग। इस थ्योरी को थोड़ा अगर आप बताएं कि शिवलिंग हमेशा नीचे होता है, पहले मंजिल पे कैसे मिल गया। तो आप कह रहे हैं कि उसके नीचे और भी कुछ एक्सकेवेशन के बाद निकलेगा तो लंबा कुछ शिवलिंग निकलेगा, या क्योंकि मुस्लिम साइड के कई लॉयर्स ने ये कहा कि ग्राउंड फ्लोर पर शिवलिंग होता है, फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर कैसे शिवलिंग आया। नहीं, ये ऊपर है नहीं। काशी का जो भौगोलिक ये देखा जाए जी तो वो स्थान इतना ऊंचा है जी कि कोई भी निर्माण होगा, कोई भी इंजीनियर होगा तो उसको ऊंचा कर कर ही लगाएगा। और इसके बाद फिर उसकी दीवारें शुरू होंगी। तो दीवार से लगा होने के कारण ये उसको पहला मंजिल दूसरा मंजिल नहीं कहना चाहिए, वो आधार है। और उसके नीचे, आधार के नीचे भी बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं, इसलिए जब और खुदाई होगी तो और भी चीज़ें उसमें से पांडे जी, निकलेंगी। एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। आपने हमसे जब भी बात की आपने कहा है कि आस्था का सवाल है, हिंदुओं की आस्था के सवाल है, किसी पार्टी का सवाल नहीं है। आज अशोक गहलोत का एक बयान सामने आया, वो ये कहते हैं कि आस्था नहीं है ये एक तरह से इंटॉलरेंस है, हिंदू और मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। तो आपकी फेथ के ऊपर, आस्था के ऊपर सवाल उठा रहे, कह रहे कि ऐसे तो 100 जगह ही निकल जाएंगी। ऐसा है कि कहा गया है कि जब विपत्ति काल आती है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। विपत्ति काले विपरीत बुद्धि। तो ये कांग्रेस का जो कालखंड चल रहा है, इसी कारण ऐसा चल रहा है क्योंकि बुद्धि विपरीत हो गई है। ये नहीं देख रहे हैं कि ये हजारों वर्षों से ज्ञानवापी का वर्णन, उसका ऐतिहासिक, उसका भौगोलिक महत्व ये पुराणों में वर्णित है। और हम उस ज्ञानवापी परिसर की बात कर रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। और उस परिसर में अगर कोई हिंदू आस्था की संपत्ति है, So that is exactly what the Temple Trust has to say. We have been playing out multiple reactions saying that it is there in the old documents, it is there in the Purans, where they go on to mention that how this entire complex initially was a mandir. Mohit continues to be with us, and also Amir and Madhav also joining us live. Pratibha, if you can help us understand, because through animation we've been trying to play out through graphics and through pointers to make our viewers understand in a better way what it is all about, especially when the Hindu side is now asking for a further extension on the excavation. That's right. So there are two applications that are in court. So we're going to take a look at what are the 7 points that have been mentioned in these applications. This is pertaining to the Wuzu Khana, that is the area where the shivling has been found, that has been sealed. So the application saying Gyanvapi case, that is in the Supreme Court, that is in the Varanasi court, that's what we are talking about. One is alternate arrangement for performing ablution. This is point number 1 that has been mentioned in the petition that had been filed in the court. That was one of the points. And then access to the toilet blocked, and there should be an alternate arrangement that is needed. This was also one of the petitions saying because this area where the shivling has been found has been sealed, this is causing a lot of inconvenience to those who are visiting the mosque. So this was also one of the points that was raised. And the fish in the wuzu tank also should be moved elsewhere. This was also one of the petitions that had been made dealing with the issues, as we said, that is because the area had been sealed completely. Now, application number 2 is demand for another survey. Remember, the Hindu petitioners have been asking for another survey to take place. For 3 days, the survey was conducted, after which they said Baba Mil Gaye. This was a big claim that was made, but that was countered by the Muslim side that said that it was actually a fountain and it was not a shivling. So now an application has been filed for the survey to continue for another 2 days. So the point being made is that no wuzu in and around the area where the shivling was found, as we've been reporting on that. And the wall near the shivling and the Nandi should be broken and the debris should be completely cleared. This is also one of the points that has been made in the application. And these are, of course, the focus that's going to be in the application that has been filed. Amir is also joining us, so let's get in a word from him as well. Amir, there are 2 different applications that have been filed, 2 different petitions with the court. So all eyes are going to be on what the decision is going to be as both the sides await the court's intervention. Well, absolutely.
Absolutely. You see, today was the lawyers' strike here, and therefore the civil judge court could not sit today, although there are attempts being made from the Hindu side in terms of making an appeal to the Bar Association members to convene a meeting and allow the assembly of the court here. But it is still not clear whether these two applications on the earlier filed petitions will be taken up today in the Varanasi Civil Court today. But for now, we have with us Dr. Rajiv Srivastava, who happens to be a professor of medieval history in the Banaras Hindu University, and he has started a unique campaign to include Indian Muslims in terms of inclusivity into the entire controversy and seek their approval in terms of taking possession of the Gyanvapi Mosque complex. He has some very interesting details to share with us. Dr. Rajiv, आप किस तरह से एक मुहिम चला रहे हैं हिंदुस्तानी मुसलमानों को ये बताने की कि वो औरंगजेब से, मुगलों से अलग हैं, और किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको पिछले कुछ दिनों से? देखिए, जो सच इतिहास है वो मुसलमानों को नहीं पता, खासकर भारतीय मुसलमानों को। भारतीय मुसलमानों को ये भ्रम पैदा कर दिया गया है कि जो मुग़ल थे उनके रिश्तेदार हैं। गजनी, गोरी, औरंगजेब और बाबर कभी भी भारतीय मुसलमानों का रिश्तेदार न था, न है, न रहेगा। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, किसी भारतीय मुसलमान ने मंदिर नहीं तोड़ा। और जब मुग़ल आने को थे तो उसके पहले अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कोर्ट में कहा था कि जब ये मुग़ल आ जाएंगे भारत में तो ये धन धर्म धरती ये नहीं छोड़ेंगे। 1290 से लेकर 1526 तक भारतीय मुसलमानों का शासन था, और भारतीय मुसलमानों ने इन तीनों स्थानों की पवित्रता को समझा। काशी, मथुरा और अयोध्या में उन्होंने कोई विध्वंस नहीं किया। लेकिन बाद में चल करके जब बाबर आया तो बाबर 21 अप्रैल 1526 को उसने इब्राहिम लोदी को हराया, जो भारतीय मुसलमान शासक था। उसमें जो 1 लाख लोग मरे वो भारतीय मुसलमान थे। उन्होंने भारत को बचाने के लिए कुर्बानी दी। लेकिन बाबर मंगोल था, विदेशी आक्रमणकारी था, और उसने अयोध्या के मंदिर को तोड़ा। उसको ये बताना था, क्योंकि उसको मध्य एशिया में कोई मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं था। तो आप लोग जो मुहिम आप चला रहे हैं ये समझाने की कि भारतीय मुसलमान मुगलों का हिस्सा नहीं है और भारतीय हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं, उसका किस तरह से रिस्पांस आपको मिल रहा है? नेचुरली, क्योंकि यहाँ का जो मुसलमान है वो कभी हिंदू थे, हिंदुओं की संतान है, और हम सारे लोग भाई हैं। तो हमारा झगड़ा है तो हमारा झगड़ा ठीक है, कोर्ट में तो चले जाते हैं लोग, लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा तभी हल होता है जब हम डायलॉग करते हैं। तो क्या आप ये देख रहे हैं कि मुसलमानों की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है कि हम इस मस्जिद में नहीं जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ देवी देवताओं के अंश हैं, उनके प्रतीक हैं? बनारस के कम से कम हजारों मुसलमानों ने हमसे कहा है कि मैं उस मस्जिद में जाता ही नहीं हूँ। यहाँ के बड़े आलिमों ने कहा है कि मैं उस मस्जिद में कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर विश्वनाथ जी का मंदिर है और आदि अनंत काल से विश्वनाथ जी का मंदिर है, वो जाते नहीं हैं। और कई मुस्लिम संगठनों ने यह भी कहा है कि हम प्रयास करेंगे कि लोग हिंदुओं को सौंप दें, हिंदुओं का स्थान है, क्योंकि काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है, हिंदुओं के पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है, मक्का मुसलमानों के पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है। तो लोग प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग का जो प्रयास है आलिमों को बुला करके, जो मुस्लिम आलिम है और जो हिंदू धर्माचार्य हैं, इन दोनों को आपस में बैठा करके, क्योंकि ये पक्का है कि जैसे कोर्ट में जाएगी, रोज मीडिया में खबरें आएंगी, नफरत फैलेगी तो हम औरंगजेब को तो पकड़ नहीं पाएंगे। तो बगल में जो रियाजुद्दीन रहता है, जो कलमुद्दीन रहता है, उसको हम पकड़ेंगे, या जो बगल में रामलाल रहते हैं उनको पकड़ेंगे। तो आपस में Right. So you see there, Pratibha, it's very interesting that while the daily hearing is on in the court, almost it's like a regular hearing. There are efforts being made by people like Dr. Rajiv Srivastava to reach out to Indian Muslims, especially the ones here in Varanasi, and apprise them about the importance of the Kashi Vishwanath temple and the disputed area within the Gyanvapi mosque complex, so that to create. Getting us those live updates quickly.